معدنیات کے خزانے تلاش کرتا ایک جفا کش مزدور، اور سڑکوں پر رواں دواں یہ قافلے، یہ کاروان عزم و امید کی اسی روایت کے مظہر ہے جس نے السلام علیکم، اسٹار ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں شازیہ قاسمی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں حلقہ NA 127 میں۔ یہاں کے عوام کی رائے بھی لیں گے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ کس طرح قدر سیاستدانوں کے اوپر مطمئن ہے، جبکہ الیکشن کی بات کی جائے تو انتخابی مہم جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور NA 127 سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کے عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ اس مہم میں انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ انتخابی مہم جو ہے اس کا آغاز بھی جاری ہے، اس کا ولولہ اور شور جو ہے وہ بھی عروج پہ ہے، لیکن عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے یہ ہم عوام سے جانتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، آپ مجھے بتائیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ اس علاقے کے مسائل تو پانی کے بھی ہیں اور ویسے بھی بچوں کے بھی، دیکھو نا کھیل کا تمہارے سامنے ہی ہے، جو کچھ بھی ہے مسائل تو بہت ہیں اس علاقے کے۔ صفائی ستھرائی کا کیسا انتظام؟ دیکھ لو آپ کے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، صفائی کوئی ستھرائی صفائی ستھرائی نہیں کوئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں۔ گیس آ رہی ہے؟ گیس تھوڑی تھوڑی آ رہی، کہیں آ رہی کہیں نہیں بھی آ رہی۔ ہاں، تو مہنگائی کے اوپر کیا کہنا ہے؟ مہنگائی تو پھر جو بھی کہیں تو وہ کم ہے۔ ہاں، شریف نواز پہلے تھے، انہوں نے غریبوں کو نہیں جانے دی، وہ شہباز شریف آئے تو بہت مہنگائی اٹھ گئی، حد سے زیادہ اٹھ گئی۔ مزدوری نہیں ہے بیٹی، پہلے تو مزدوری نہیں ہے تو مہنگائی کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اس علاقے کی کیا مسائل ہیں؟ مسائل یہ ہیں کہ سب سے بڑا گیس کا مسئلہ ہے کہ جو رات کو بند ہو جا رہی ہے، کوئی لیٹ اگر آتا ہے تو کھانے کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ صبح میں بھی 6 بجے کے بعد آتی ہے، اور وہ حساب کے پانی کا بھی ٹائمنگ دیکھ لیں، 2 گھنٹے کی دی ہوئی ہے۔ یہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، نون بالکل، لیگ نے کس حد تک یہاں پہ کام کیا ہے؟ بس دیکھ لیں آپ کے سامنے، اب تو جو آ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم کر کے جا رہے ہیں، لیکن نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس دفعہ کس کے اوپر آپ کی امیدیں وابستہ ہیں؟ میری تو امیدیں کسی پہ وابستہ نہیں ہیں، کیونکہ میں اپنی جو دل کی بتا رہی ہوں، کیونکہ ووٹ بھی میں نے جو نا ابھی فیصلہ نہیں کیا ابھی کہ کس کو دینا ہے۔ بس یہی ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں تو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب ووٹ جب دیں گے کہ ہمیں نظر آئے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وعدہ کر جائیں گے، آنا نہیں انہوں نے، بس یہی ہے۔ وعدہ کر جانا ہے مگر آنا نہیں ہے۔ حکمرانوں کے وعدے جو ہے جوں کہ توں ہے، لیکن عوام کی بات کیجئے تو عوام کا رونا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ کون سا ایسا بندہ آئے گا جو پاکستان کے تقدیر جو ہے وہ بدل دے گا؟ تو اسی طرح کی عوام کے ملے جلے جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ اور بھی ہم شہریوں سے بات کریں گے اور دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں سے شہریوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی اچھا، مجھے بتائیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ ابھی وہ جنرلی جس علاقے میں مسائل ہیں اس میں ایک تو صفائی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، دوسرا جو چھڑا علاقہ ہے اس کے اندر 5 مرلوں کے گھر کو لوگوں نے ڈیوائڈ کر دیا، اس کی وجہ سے سڑکیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ جس گلی میں آپ کھڑے ہیں تو بہتر ہے، لیکن پیچھے والی گلی میں جائیں گے، اس سے پہلے جائیں گے وہاں پہ گلیاں چھوٹی ہو چکی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کو ان چیزوں کے اوپر خیال کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب بارش ہوتی ہے تو نکاسیاب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پہ۔ مہنگائی اس وقت مہنگائی تو ایک ایسی ایشو جس کے نہ بات کی جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک ٹاپک انہوں نے ختم کر دیا، ہماری زبان سے منہ سے زبان چھیننے والی بات ہو گئی ہے، تو بات کر کے بھی ہم شرمندہ ہونے والی بات ہے کہ خود سے۔ آج میاں نواز شریف نے اپنا منشور جو ہے وہ دیا ہے، جس میں انہوں نے خاص طور پہ یہی کہا ہے کہ ہمارے دور میں اگر 2015 یا 16-17 کی بات کیجئے تو مہنگائی بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے۔ اس کے ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ابھی میں ماشاءاللہ 30 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں 30 سال سے ان لوگوں کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ ابھی جب بھی کوئی آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈال کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم سے پہلے لوگوں نے قرضے لیے، باقی لوگوں نے قرضے لیے، وہ قرضے ہم سے پہلے عمران خان کو ایک موقع ملا ہے،
ठीक है ना। उससे पहले तो इनको मौका मिलते रहते, तो उनसे पहले किसने कर्जे लिए थे? वो कर्जे तो हमने नहीं चुकाए ना अभी तक। वो चढ़ते गए, ठीक है, उसने भी लिए, मैं नहीं कहता कि सारे बराबर हैं, लेकिन अभी तक में पाकिस्तान का कौन सा ऐसा लीडर बेहतर होगा, किसके ऊपर मैं इमरान खान के साथ जाना पसंद करूँगा। ठीक है, मैं पिछले कभी नून लीग के साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन आई विल गो फॉर इमरान खान फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम अच्छा, मुझे बताएं कि इस इलाके के क्या मसाइल हैं? मसाइल ही सड़कें वगैरह ख़राब है, गटर वगैरह बंद पड़े हुए, लेकिन वो खोल के गए हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा कारआमद नहीं हुए। और दूसरा ये नून लीग का इलाका है, क्या समझे, वो बाहर तो काम माशाल्लाह करवा रहे हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन आगे उनकी किस्मत देखें क्या बनता है। बिलावल भुट्टो सरदारी की बात कीजिए तो वो भी काफी मुतफिक। हाँ जी, वो भी पैसे लगा रहे हैं, ज़ाहिर बात है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है पैसे नहीं लगा रही। आपकी उम्मीदें किसके ऊपर वाबस्ता है? मैंने तो आज तक किसी को वोट दिए नहीं वैसे, क्या समझे, क्योंकि अवाम के हक में कोई भी नहीं है। जो आने वाले हैं मज़ीद कोई नया भी आएगा तो वो भी अवाम के हक के अंदर नहीं है। महंगाई मुसलसल हो रही है, कोई रोक नहीं हो रही। जो घी 150 रुपये का था वो अब 700 रुपये का चला गया है। इसके जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? हुकूमत ही है, और किसे सलाह है? कौन सी हुकूमत? जो भी आती है, इसका तो कोई कन्फर्म नहीं है। हालांकि हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करे, और जो गरीब है गरीब से गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर हो रहा है। ठीक है, सामने को। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपका इलाका है इसके क्या मसाइल हैं? इसके बहुत सारे मसाइल हैं। ये बागीचा ख़राब होया पड़ा है, ये गटर बह रहे हैं, और ये अभी सड़क बनाई है वोटों की तरफ से, पहले ये भी सड़क नहीं थी, और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, आपकी कहने का मकसद ये है कि जब इलेक्शन सर पे होता है तब आते हैं और वक्ती आके काम करते हैं, वादे करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। क्या उसके बाद अवाम के मसाइल हल होते हैं कि नहीं? ये मसाइल हल नहीं करते, ये सिर्फ अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और कोई बाहर चला जाता है, कोई किधर चला जाता है, कोई घड़ी भेज रहा है, कोई। ये पाकिस्तान को महंगाई जाके देखो, लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी नज़र में पाकिस्तान के लिए कौन सा लीडर बेहतर है? हमारे वास्ते तो कोई लेते नहीं, नया आना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं नया आवे कोई, पुराने सारे खाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। इस इलाके की क्या मसाइल हैं? इस इलाके के वही मसाइल हैं जो रूटीन में हर इलाके के होते हैं। एज़ इट इज़ अभी तक जो है वो मैंने अपनी 50 साल की लाइफ में कोई तब्दीली नहीं देखी है। पानी साफ आ रहा है? वो तो आपको पता है कि इतनी पुरानी यहाँ पे सब चीज़ें हैं कि अभी तक जो है ना कोई तरतीब नहीं है उनकी, कोई प्रॉपर उसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो बाकी नून लीग यहाँ पे ज़्यादातर रही है, लेकिन उस जी गढ़ था, लेकिन पिछली दफ़ा यहाँ पर जो पीटीआई जो है ना शबीर गुजर साहब जीते थे, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब चेंजिंग का वक्त है। अगर फेयर इलेक्शन हो तो इंशाल्लाह यहाँ पर पीटीआई ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि इस इलाके की क्या मसाइल हैं? गैस वगैरह की प्रॉब्लम है जी। इधर गैस जो है ना कम आती है, तो लोग बड़े परेशान हैं गैस की वजह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत जो है ना ये मसले हल करेगी। किसके ऊपर उम्मीद है आपकी? सारों पे ही उम्मीद है जी, जो भी सिलेक्ट होके आ जाएंगे बस। नून लीग का गढ़ है समझा जाता है ये। हाँ जी, ये नून लीग का गढ़ है जी। काम भी करवाए हैं या सिर्फ वादे ही? नहीं, काम करवाए हैं जी नून लीग ने इस इलाके में ना, काफ़ी काम करवाए हैं। यहाँ के जो हमारे चेयरमैन है ना अजमल हाशमी साहब, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम करते हैं, और उन्होंने काम करवाए हैं इस इलाके के। इसमें आपने देखा कि ये खुला नाला जो है वो भी उगल रहा है, बदबू का मंजर है, ताफुन फैल रहा है, जबकि यहाँ की आवाम जो है वो बहुत मसाइल का सामना कर रही है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये खुला नाला है, बदबू है, ताफुन फैल रहा है, डेफिनेटली घर की जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो भी आपकी ख़राब होती होंगी, और क्या मसाइल है आपके? मसाइल ये है, एक तो नाला साफ़ होना चाहिए, जब नाले को ऊपर बंद कर देना चाहिए। फ्रिज वगैरह एसी वगैरह ये ख़राब हो रहे हैं, और उसकी स्मेल जो है वो घरों में आती है, वो रात को भी परेशानी होती है। दूसरा ये बिजली का मसला है, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि मज़दूर आदमी मज़दूरी करता है तो मज़दूरी नहीं मिलती, शाम को आता है तो बिजली के बिल इतने होते हैं कि परेशान हो जाते हैं। अवाम जो है इतनी परेशान है हद से ज़्यादा। हुकूमत जो है अपना पैसा लूटती है, मेंबर काउंसलर अपने पैसा लूटते हैं, ले जाते हैं,
कोई काम यहाँ नहीं करा रहे। गैस आती नहीं बिल्कुल, गैस का भी बहुत यहाँ प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पर नाले का तो इतना प्रॉब्लम है कि जितने भी साथ घर वाले बैठे हुए, जितने भी घर हैं सारे, एक तो इनको बीमारी का शिकार होते जा रही है, खारिश होती जा रही है, इनको तो बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। इस नाले को बंदोबस्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि गैस और बिजली का परेशानी भी बहुत है कि हुकूमत इस बारे में कुछ भी नहीं सोचती, जो भी हुकूमत है अपनी जेबें भरती है ले जाती है। जी बिल्कुल, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है NA 127, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। नाला है वो उगल रहा है, ताफुन फैल रहा है, कच्चे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि लोगों की जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो है वो भी ख़राब हो जाती हैं। गैस के मसाइल है तो वो भी जूं के तूं है, यहाँ पे गैस का नामो निशान तक नहीं है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मसाइल है आपको? भाजी मसाइल है, इस नाले से बहुत गंदगी है, मच्छर बहुत है, रात में बहुत तंग करता है, तो कोई सफाई अच्छी नहीं हो रही है, तो बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। मेरी बच्ची ने लगवा हो गया, ठीक है, इतनी रही जैसे इतों मकान छड़िया ऐसे चले गए कोठी च, तो बहुत बच्चे बहुत मसला है। कुछ भी नहीं कराते, आगे गलियाँ देखें आप जाकर ज़रा, ये आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये गलियाँ, उसमें इतना गटरों का पानी खड़ा है, कुछ भी नहीं करते वासा वाले, नहीं कुछ कोई भी नहीं है। ये जब बारिश होती है ना, इधर इतना पानी खड़ा हो जाता है, इस गली में इतना पानी खड़ा हो जाता है। क्या इन्हों को अपने वोटों के साथ है, बस कोई बात नहीं, बस वोटों के साथ है, इन्हों को कोई वोट ना दे, बस यही है। आपका क्या फैसला है, वोट देना है कि नहीं? नहीं, सारा काम वोट किसी ने भी नहीं देना, हमारा काम ही नहीं होता, हमें क्या लोड़ है वोट देने की। बिल बहुत आता, गैस चलती भी नहीं पी तो गैस बिल पाई बहुत। जी बिल्कुल, भारी भरकम बिल जो है वो आ जाते हैं, मगर किसी किस्म का कोई काम नहीं। अगर सीवरेज का निज़ाम देखा जाए तो यहाँ पे गटर जो हैं वो उगल रहे हैं, जबकि आए दिन यहाँ पे ये जो गंदा नाला उगल रहा है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हादसात जो हैं वो भी पेश आते हैं। कभी कोई यहाँ पे जानवर गिर जाता है, तो कभी कोई ऑटो रिक्शा जो है वो भी बाज़ दफ़ा यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आया है। और बाज़ दफ़ा जो है यहाँ पे बच्चे जो है खेलते हुए वो भी गिर जाते हैं, जबकि आवाम आपकी नज़र के सामने है। आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे अवाम जो है वो नाला नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जबकि देखा जाए ये गढ़ समझा जाता है। अवाम का यही कहना है कि वोट लेने तो आ जाते हैं, मगर हमारे मसाइल जो है वो कौन हल करेगा, किसका जाके दरवाज़ा जो है उसको दस्तक देंगे हम, कौन हमारी सुनेगा। हमारी उम्मीदें जो हैं इन हुक्मरानों से उठ चुकी हैं, अब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमारा फैसला जो है वो यही है कि हम वोट नहीं देंगे। ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आवाम का गुस्सा जो है वो देख सकते हैं। हम और भी शहरियों से बात करते हैं।